हाँ जी, this is Amit Kumar from Electrical Department, Chandigarh Polytechnic College, and today I am discussing about the next chapter of theory. Now I am going to share a PPT related to that topic. So we are going to next chapter, that is AC fundamentals. In AC fundamentals, we are going to discuss the topic that is Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction is dependent upon the how the EMF is induced in electric circuit. So Faraday's first law that states that any change in the magnetic field of coil of wire will cause an EMF to induced in the coil. According to Faraday's first law, if we place a coil in the magnetic field and if the magnetic field is changed, or we can say that magnetic flux is changed, then an EMF is induced in the coil according to Faraday's law. This EMF is induced in the coil is called induced EMF. जो EMF induced होता है coil के बीच में उसे हम क्या कहते हैं, induced EMF. And if the conductor circuit is closed, the current will also circulate through the circuit. And this current is called induced current. अगर हम सर्किट को क्लोज रखते हैं तो एक करंट सर्कुलेट करता है सर्किट में से, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट. दैट करंट इज इंड्यूस्ड फ्रॉम द बाय द EMF दैट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट इन द coil. Method to change the magnetic field. Here are two methods of changing the magnetic field. First, if we place a coil is stationary and we change the magnet, we move the magnet near to the coil and away from the coil, then magnetic field will be changed. The other method is that if we place a coil in a stationary magnetic field, then we will move the coil in the magnetic field, then the coil will cut the magnetic field and then magnetic field will be changed. So we can say that then EMF is induced in the coil according to Faraday's first law. तो अगर हम वर्बली बोले, नॉर्मली लैंग्वेज में बोले कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉइल रख देते हैं और वो कॉइल मूव कर रहा है, इसके कारण जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जो लिंक कर रही है कॉइल के साथ वो चेंज हो रही होती है. चेंज होने के कारण उसमें एक EMF इंड्यूस्ड होता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड EMF. वो EMF इंड्यूस्ड होता है कॉइल के अंदर. अगर हम कॉइल के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक सर्किट लगा दें, कोई लोड लगा दें, तो वो हमारा करंट जो इंड्यूस्ड EMF होता है उसके कारण एक करंट सर्कुलेट करता है सर्किट में और या फिर लोड में, जो हमने लोड लगाया उसके अक्रॉस, तो उसे कहते हैं हम इंड्यूस्ड करंट. इस मेथड को इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड करने को हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ. ये फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू फैराडेज सेकंड लॉ. According to Faraday's second law, it states that magnitude of EMF induced in the coil is equal to the rate of change of flux that linkage with the coil. अगर हम Faraday's second law के अकॉर्डिंग देखें तो जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है हमारा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की, जो हमारा लिंक कर रहा है कॉइल के साथ. अगर जितना ज़्यादा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितना ज़्यादा हमारा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास EMF इंड्यूस्ड होगा.
तो फैराडे सेकंड लॉ यही कहता है कि जो हमारा ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे हमारा ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे ईएमएफ का उतना ही ज़्यादा हमारा मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ का। एंड द फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। जो फ्लक्स लिंक कर रहा है हमारा कॉइल के साथ वो क्या है, प्रोडक्ट है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जिन टर्न्स के साथ हमारा कॉइल बना है, एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is Fleming's right hand rule. According to Fleming's right hand rule, it is used for the generator, and it shows that direction of induced current when a conductor attached to a circuit moves in a magnetic field. जो फैराडेज राइट हैंड रूल है वो हम जनरेटर के लिए यूज करते हैं, एंड ये क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताते हैं इंड्यूस करंट की जब हम कंडक्टर अटैच कर देते हैं एक सर्किट में जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगा हुआ, एंड इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए जनरेटर्स वाइंडिंग। और ये हम क्या करते, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, हम डायरेक्शन चेक करने के लिए करंट की जनरेटर की वाइंडिंग में। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जनरेटर के लिए। जनरेटर के लिए कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ताकि जो हमारा करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए, ठीक है। वो डायरेक्शन कहाँ पे चेक करनी है हमने, जो उसकी वाइंडिंग है, जनरेटर की वाइंडिंग में। फर्स्ट पॉइंट, और हम चेक कैसे करते हैं वो प्रोसीजर यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने राइट हैंड की थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडल फिंगर को स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा 90 डिग्री के एंगल पे। और ये बताती है जो हमारा थंब है वो क्या बताएगा, फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया हुआ है द थंब इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो थंब है हमारा वो बता रहा है हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, और जो हमारी फोर फिंगर है या फर्स्ट फिंगर है, फोर फिंगर भी बोलते हैं इसको, वो क्या बता रही है, द फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो हमें बता रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारी मिडल फिंगर है वो क्या बता रही है हमें, देन द सेकंड फिंगर या मिडल फिंगर कह रहे हैं जिसे हमें, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विद इन द कंडक्टर। जो हमारी मिडल फिंगर है या सेकंड फिंगर है वो हमें क्या बता रही है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो करंट हमारे जनरेटर में इंड्यूस हुआ है। तो सिंपली हम जनरेटर के लिए, जो जनरेटर में करंट इंड्यूस्ड हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, और जो मोशन ऑफ कंडक्टर है वो हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको, थंब इज यूज्ड फॉर द मोशन ऑफ कंडक्टर, फोर फिंगर इज यूज्ड टू the direction of magnetic field, and middle finger is used for the direction of induced current within the conductors. Now we are going to the next topic, that is Fleming's left hand rule. According to Fleming's left hand rule, it is used for the electric motors. In last topic, the Fleming right hand rule, which is used for the generator. According to Fleming left hand rule, again we stretch out the two fingers and one thumb at a 90 degree angle. So the thumb represents the direction of the thrust on the conductor or motion of the conductor, same. Again the thumb is used to represent the direction of
motion of conductor, and forefinger represent the direction of magnetic field, and center finger represent the direction of current in electric motor in the conductor. So Fleming left hand rule is used for the electric motor. Again I am defined. जो हमारा थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, एंड जो हमारी फोर फिंगर है वो बताएगी हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो सेंटर फिंगर है वो हमें बता रही है द डायरेक्शन ऑफ करंट. So this is the last topic, and these rules are used for the electric motors, generators, and I am also explain the Faraday's law in this chapter. So I complete my lecture. So thank you.